کبھی وزیر اعظم اپنے وزیر اعظم سے مخاطب ہوں. آپ کس کو نامزد کر رہے ہیں انسانی حقوق کے معاملے میں اور امن امان قائم کرنے کے معاملے میں کہ ان کو بین الاقوامی امن کا انعام دیا جائے؟ یہ لائق ہے وزیر امریکہ کا صدر؟ میں اس حملے کو بین الاقوامی غنڈہ گردی سمجھتا ہوں. اقوام متحدہ کا منہ چرانے والا حادثہ سمجھتا ہوں. کہاں ہے اقوام متحدہ؟ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کی پیروکار ہے. میں ان سے ان کی اس المناک شہادت پر تعزیت کرتا ہوں. پاکستان میں اور دنیا میں جو ان کے مکتب فکر کے لوگ ہیں، میں ان سے تعزیت کرتا ہوں. پاکستان میں بھی بہت ہے، پاکستان بھی سراپا احتجاج ہے. کیا ہے پھر اقوام متحدہ؟ جب اقوام متحدہ بے بس ہے، اسرائیل اور امریکہ اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی قانون نہیں ہے بین الاقوامی، کسی بین الاقوامی ملک کی سرحد کا احترام نہیں کیا جائے گا، کل کسی بھی ملک پر وہ حملہ کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، کبھی جلدی بھی. لیکن آج کا پروگرام جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہے، کیونکہ آج ہمارے برادر مسلمان ملک کے سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنئی کو ایک حملے میں شہید کر دیا گیا ہے. اور یہ عام بات نہیں ہے. میں اس حملے کو بین الاقوامی غنڈہ گردی سمجھتا ہوں. اقوام متحدہ کا منہ چرانے والا حادثہ سمجھتا ہوں. کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے بین الاقوامی قانون؟ پتہ ہے ایک اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایک خود مختار آزاد طاقتور ملک پر حملہ کیا ہے، اپنی ملکوں کو کراس کر کے. اس کے ملک میں جا پہلے بھی امریکہ نے کیا، وینزویلا میں کیا، اور اس ملک کے سربراہ کو ہتھکڑی لگا کر لے گیا. لیکن وہ قصہ کچھ پھر بھی مختلف تھا. یہاں اگر ایٹم بم کی بات تھی، امریکہ کی حجت تھی، اسرائیل کو شریک کر کے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمام عالم اسلام کے منہ چرانے کی بات ہے، بے عزت کرنے کی بات ہے عالم اسلام کو. پورا عالم اسلام اسرائیل کی مذمت کرتا ہے، اسرائیل کو دشمن سمجھتا ہے. یہ اسرائیل کو لے کر ایک اسلامی برادر ملک کے سربراہ کو اس انداز سے قتل کیا ہے. پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، پورے غم میں بھرے ہوئے ہیں. اسی لیے میں نے آج یہ جلدی میں پروگرام 5 منٹ کے لیے کیا ہے، تاکہ میں ایران میں جو لوگ خامنئی کو، خمینی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کی پیروکار ہے، میں ان سے ان کی اس المناک شہادت پر تعزیت کرتا ہوں. پاکستان میں اور دنیا میں جو ان کے مکتب فکر کے لوگ ہیں، میں ان سے تعزیت کرتا ہوں. پاکستان میں بھی بہت ہے، پاکستان بھی سراپا احتجاج ہے. پاکستان میں لوگ رو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں خود سے تعزیت کرتا ہوں، اظہار تعزیت کرتا ہوں. میں بھی ان کو احترام سے دیکھنے والا سمجھتا ہوں، اور میں ان سے پیار کرنے والا ہوں. میں ان کو ایک جرأت مند، غیرت مند مسلم لیڈر سمجھتا ہوں. میں نے خود سنا میرے بہت سارے روحانی رہنماؤں کو، مذہبی رہنماؤں کو میں نے سنا جب انہوں نے اسٹینڈ لیا خامنئی صاحب نے اسرائیل پر ان پر، اور اپنے فوج بھیجے گزشتہ جنگ میں، تو کہہ رہے تھے مسلمان ہمارے اہل سنت کے رہنما کہ یہ ہے لیڈر. انہوں نے کہا ہماری پیشن گوئی تھی صرف ایران کا لیڈر ایسا بھی کرے گا اس حملے پر. پر افسوس ہے عالم اسلام کے اکثر ملکوں پر ان کو وہ غیرت نہیں آتی جس کی تقاضا عام مسلمان کرتے ہیں مسلمان سربراہوں سے. ان کے مفادات ہوں گے، میں اتنا نہیں جانتا. میں جانتا بھی نہیں، میں اتنا خارجہ پالیسی کا ماہر بھی نہیں ہوں. مجھے صرف دکھ ہوا ہے. میں تعزیت بھی کر رہا ہوں، احتجاج بھی کر رہا ہوں. تعزیت کر رہا ہوں ان سے جو ان سے پیار کرنے والے ان کے ملک کے لوگ ہیں.
एहतजाज कर रहा हूं इस कानून पर कि ये कौन सा कानून है जिसके सामने अक़वाम मुत्तहिदा बेबस है, जिसके सामने दुनिया के सारे ममालिक बेबस हैं, जिसके सामने मुल्क इतने ममालिक हैं तहज़ीत करते हुए घबरा रहे हैं, तमाम महदूद अल्फाज में, मोहतात अल्फाज में बातें कर रहे हैं। हम इसराइल जैसा कातिल मुल्क, मुजरिम मुल्क क्या करते रहे अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ? तब तो हमने गजा में क्या इन्होंने किया, कितना अर्सा किया है, पूरे शहर गजा का गिरा दिया है, हजारों लोग मार दिए हैं, हजारों बच्चे मार दिए हैं। कोई आवाज नहीं उठी कि ये क्या हो रहा है। कोई अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को आफरीन हो, उन्होंने तो कुछ आवाज बुलंद की, दुनिया ने तो कुछ आवाज बुलंद नहीं की। और ये उससे भी बहुत बड़ा वाकया है। उनको उठाकर उसके साथ बहुत सारे लीडर कत्ल कर दिए गए, नामा लीडर हैं ईरान के। ये आम वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ा वाकया है। अभी तो मैंने सुना है साबिक सदर भी अहमद निजादी भी उनके साथ शहीद हुए हैं। अभी मैंने सुना, पता नहीं तस्दीक हुई है या नहीं हुई है। उनको तो मैंने देखा जब वो जरदारी साहब गए बलोचिस्तान, ईरान की सरहद पर सुई गैस के कनेक्शन के इफ्ताह के लिए मैं भी गया, मुझे भी ले गए थे। जरदारी साहब एहसान किया चौबार, लेकिन वो भी बड़े बहादुर थे। इस्लामाबाद भी आए थे तो मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन ये क्या हुआ है, ये जो हम आम सियासी कारकुन हैं इन वाक़यात को देखकर फिर कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जरूरत नहीं है। क्या है फिर अक़वाम मुत्तहिदा? जब अक़वाम मुत्तहिदा बेबस है, इसराइल और अमेरिका इतने ताकतवर हैं कि कोई कानून नहीं है बैनुल अक़वामी, किसी बैनुल अक़वामी मुल्क की सरहद का एहतराम नहीं किया जाएगा, कल किसी भी मुल्क पर वो हमला कर लेंगे। ऐसे बकवास की तरह बयान है। ईरानियों ने कहा हम कत्ल करेंगे खामनेई को, ऐलान करके कत्ल का नाम लेकर उन्होंने कत्ल किया है खामनेई को। जंग की हालत भी नहीं थी कि जंग है उसमें बम लगा है, गोली लगा, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने तो ऐलान करके खामनेई को कत्ल किया है। हमारे दिल रो रहे हैं कि ये इंसानियत नहीं है, ये खामनेई को उन्होंने कत्ल नहीं किया है, ये इंसानी रवायत को कत्ल किया है, इंसानियत को कत्ल किया है, बैनुल अक़वामी कानून को कत्ल किया है, बैनुल अक़वामी इंसाफ की रिवायतों को कत्ल किया है इन्होंने। अब जो भी हुकूमत है, हमें तो परेशानी नहीं है, हमारा मसला नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से खामनेई साहब को कत्ल किया है वो हमें दुख है। मेरा खामनेई से कोई रिश्ता नहीं सबा इंसानियत के। ये तरीक़ेकार हिमायत नहीं की जा सकती। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से, पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से, सियासी कारकुन क्यों से खुद को कहूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुन की हैसियत से मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुन की हैसियत में मैं ताज़ियत करता हूं ईरान के अवाम से और खामनेई के खानदान से। मैं ताज़ियत करता हूं पाकिस्तान में खामनेई साहब के चाहने वालों से, जो खामनेई को चाहते हैं, जो ईरान को अकीदत से देखते हैं। मैं उनसे ताज़ियत करता हूं। मैंने कहा ना, मैं खुद से भी ताज़ियत कर रहा हूं, मैं भी उनको चाहने वाला हूं। लेकिन मैं इस वक्त इस हैसियत में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस हैसियत में बात कर रहा हूं इस मुल्क को, इस दुनिया को कौन संभालेगा? अगर ये अमेरिका के सदर की और इसराइल की सदर वजीर आज़म की ये गुंडागर्दी रहेगी, फिर कौन सा मुल्क महफूज है? वेनेजुएला भी पकड़ के उधर के साथ हथकड़ियां लगा के लाए, इधर गए इतने बड़े मुल्क के सुप्रीम कमांडर को कत्ल करके आए हैं, उसके साथ बहुत बड़ी क़यादतों को कत्ल कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह पे रखते हैं कि अल्लाह इंसाफ करेगा, तो रो रहे हैं अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह अपनी जगह पर जरूर करेगा, लेकिन कुछ मामलात अल्लाह ने इंसान के हवाले किए हैं। रियासतों के मामलात अल्लाह ने इंसानों को चलाने के दिए हैं। ये एक रियासत का मामला नहीं है, ये दुनिया की रियासतों की खुद मुख्तारी का मामला है। ये रियासतों की खुद मुख्तारी क्या
हैसियत रह जाती है जो ईरान में अमेरिका और इसराइल ने किया है। मेरा ख्याल है दुनिया को नोटिस लेना चाहिए, इस रिवायतों की मजम्मत भी करनी चाहिए, रोकने के लिए भी इकदाम करने चाहिए। अगर ये होता रहा तो फिर खत्म हो जाएगा। ये तो ताकत का कानून है। फिर दुनिया काहे की बैठी जंग अजीम के बाद के आओ दुनिया के मुल्क बैठे और ऐसा रास्ता निकाले कि कमजोरों की हिमायत करेंगे, किसी कानून के तहत दुनिया को चलाएंगे। फिर वो तो जज्बा खत्म हो गया। जो हमने यूनाइटेड नेशन बनाई वो तो जज्बा नहीं रहा। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून के तहत चल रहे हैं। मुझे इतना कहना था कि मैं रिकॉर्ड पे बात लाऊं कि ये बैन अवी गुंडागर्दी है। मैं ये रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। ये आलम इस्लाम की बहुत बड़ी अक्सरियत बराए नाम लोगों को निकाले हैं। बहुत बड़ी अक्सरियत गमज़दा है। हम लोग गमज़दा हैं खामनाई साहब की शहादत पर। ये इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। मैं कहता हूं अक़वाम मुत्तहिदा को, उनके नुमाइंदों को मेरी आवाज जरूर सुनेंगे वो कि नोटिस लेना चाहिए इस वाक़े का। ये मुल्कों की खुद मुख्तारी का सवाल है। ये हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी का भी सवाल है। आए दिन ये कमबख्त दोनों मुल्क पाकिस्तान से भी इसी किसी किस्म का रखते हैं। हमें नहीं पता था ये अमेरिका का सदर हमारे वज़ीर आज़म की इस किस्म की तारीफें कर करके हमारे जनरल फील्ड मार्शल साहब की इतनी तारीफें करेंगे तो उसका क्या नतीजा? शायद तारीफें इसलिए हो रही थी। अब हमारे फील्ड मार्शल को और हमारे वज़ीर आज़म को होशियार होना चाहिए। और तारीफें करके कोई और मामला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम आपसे दुख का इजहार करेंगे। जनाब आपके होते हुए इतना बड़ा मामला हो गया है। ईरान कोई गैर मुल्क तो नहीं है। ईरान सालों से हमारा बिरादर मुल्क है। कई मुआहिदों में आर्टिकल का मुआहिदा है, कई मुआहिदों में हम साथ हैं। किसी और मुआहिदे में हो न हो, हम इस्लाम के मुआहिदे में ईरान के साथ खड़े हैं। हम जुड़े हुए हैं इस्लाम के मुआहिदे में। हम आपस में कोई हमारा मकतब फिक्र का झगड़ा नहीं है। हम मुसलमान मुल्क हैं। उस नाते से हमें बोलना है, हमें एहतजाज करना होगा, तज़ियत भी एहतजाज भी। हम इतने सारे ताकतवर मुल्क हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो अभी वज़ीर आज़म अपने वज़ीर आज़म से मुखातिब हूं। आप किसको नामिज़ कर रहे हैं इंसानी हुकूक के मामले में और अमन अमान कायम करने के मामले में? इनको बैन अवी अमन का इनाम दिया जाए। ये लायक है वज़ीर अमेरिका का सदर जिसने वेनेजुएला पे हमला किया है, जिसने अभी आयतुल्लाह को शहीद किया है? आपकी ये ऐलान आप वापस लें। कोई जरूरत नहीं है आपको इसके नाम देने की। उधर ये कातिल है। कातिलों के नाम नहीं दिए जाते बैन अवी नाम के लिए। बस मैं बात खत्म करना चाहता हूं। मेरी आवाज से आप समझ सकते हैं कि मेरा दिल कितना दुखी है। बिरादर मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है। सालों से हमारे दरमियान मोहब्बतों के रिश्ते हैं। और फिर एक इंसानी मामला है, मुल्कों की खुद मुख्तारी का मामला है। हमने अगर किसी मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं करेंगे, कल हमारे मुल्क की भी का भी कोई खुद मुख्तारी का भी कोई एहतराम नहीं करेगा। बस जिनको एहसास है, जिनको ये दुनिया अमन के साथ चलानी है, उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बस एक बार में फिर ईरान के उन लोगों से जो खामनाई से अकीदत रखते हैं, उन बच्चों से जिनको मैं टीवी पे देखता रहता था, खामनाई जिस अंदाज से बच्चों से प्यार करते, खवातीन से प्यार से पेश आते, उनका एहतराम करते, बाकायदगी से उनके साथ बैठकर बातें करते थे, जिस अंदाज से वो दरवेशों की तरह चलते उनके साथ, मैं उन मासूम बच्चों और मासूम खवातीन के साथ ताज़ियत करता हूँ। मैं उन लोगों से भी ताज़ियत करता हूँ जो उनके मकतब फिक्र से, जो खामनाई से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में भी बेपनाह लोग हैं उन अकीदे के और उससे मोहब्बत करने वाले थे। मैं उन तमाम लोगों से ताज़ियत करता हूँ। ईमानदारी की बात बताता हूँ, मैं ताज़ियत ये बात मेरे से ख़त्म नहीं हो रही है। मैं मजलिस पढ़ना जानता नहीं हूँ। ये तो ये वाक़या ऐसा है कि मैं
बहुत लंबा वक्त लेता इस मजलिस पढ़ने का। मजलिस मुझे आती नहीं है, बस सियासी कारकुन हूँ, तहजीत करना जानता हूँ, एहतजाज करना जानता हूँ। वो मैंने दोनों अभी इसी में की है। तहजीत भी कर रहा हूँ, एहतजाज का भी कर रहा हूँ, और दुनिया से भी अपील कर रहा हूँ कि ऐसे मामलात को रोके, हर मुल्क रोके, क्योंकि यह हर मुल्क के खुद मुख्तारी का मामला है। अगर मुल्कों की सरहदों की खुद मुख्तारी और आज़ादी का ख्याल नहीं किया गया तो कोई मुल्क आज़ाद नहीं रह सकेगा। अमेरिका और इसराइल की गुंडागर्दी से कोई मुल्क की खुद मुख्तारी नहीं बचेगी। बड़ी मेहरबानी।